स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनीता कोठारी। हम लोगों ने इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से शुरू किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस लिए थे और हमने वेरियस टाइप के ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेनली दो तरह के ट्रांजिशन शो करते हैं, एक तो डी ट्रांजिशन और दूसरा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे डी ट्रांजिशंस एंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, राइट। सो नंबर 1 इज द डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द हेक्सा एक्वो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स 3 ion. Here the oxidation state of titanium is +3. That means it is having only 1 d electron. Okay. Since it is an octahedral complex, the splitting pattern is like this. T2g orbital is of lower and less energy as compared to the Eg orbital. This unpaired electron is present in T2g orbital, which get excited to Eg orbital by the absorption of energy. Okay. So this electron get excited into Eg orbital from T2g to Eg orbital. During this process, this absorbs energy in visible region. That's why this is known as dd transition. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू द अदर डी ऑर्बिटल, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि डी संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन है एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में जाते हैं और इस प्रोसेस में वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और जो एनर्जी जनरली वो जो एब्सॉर्ब करते हैं इट इज फ्रॉम द विजिबल रेंज, यानी दृश्य क्षेत्र से वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम पे एब्सॉर्ब करता है। द करस्पॉन्डिंग कलर ऑफ द लाइट इज येलो एंड ग्रीन, ओके, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट कलर इज ब्लू एंड रेड, which combines to give violet color to this complex, right? So it must be clear to you, in dd transition the transition of electron take place within a set of d orbital of the same metal from one d orbital to another d orbital, right? And during this process it absorbs energy from the visible region, यानी इस प्रोसेस में वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं वो विजिबल रीजन से करते हैं, राइट। नाउ कम टू द चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, ओके। तो लिसन केयरफुली, इन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आइदर फ्रॉम मेटल ऑर्बिटल to the ligand orbital or from ligand orbital to the metal orbital. Try to understand the point what I am telling you. In charge transfer transition, the transition of electron take place from either from metal to the ligand or from ligand to the metal. On this basis, I can divide charge transfer transitions into two categories. Number 1, ligand to metal charge transfer, and number 2, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ओके। तो आप हम इसको क्लियरली पढ़ लेते हैं, बट इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट here the electron is excited, that is the transition of electron take place from metal orbital to the ligand orbital or either from ligand to the metal orbital, right? So during this process energy is required, so more energy is required. That's why such type of transitions generally take place in ultraviolet region. Note that point. In dd transition, what I told you, since transition of electron take place within a set of d orbital and hence less amount of energy is required because it is a set of the same metal ion, okay. So less amount of energy is required. That's why such transitions appears in visible region, whereas in case of the charge transfer transition, since electron get excited from metal to ligand or either from ligand to metal, so it requires more energy. So such type of transitions generally take place in ultraviolet region, okay. Now come to ligand to metal charge transfer transition, okay. Here one point must be clear to you, that since electrons are excited from metal to ligand orbital, या electrons are transferred from metal to ligand orbital, so whenever there is a transition from ligand to metal, remember ligand must have
filled orbitals. What I am telling you, ligands must have filled orbital and metal should have vacant orbital. Got it? Why? Because the electron from the filled orbital of ligand is transferred to the vacant orbital of metal. Similarly, you got it? Whenever there is metal to ligand charge transfer, then the electrons are transferred from the filled orbital of metal to the vacant orbital of ligand. Okay? So first we come in detail with the ligand to metal charge transfer. One of the most important and well-known example of such type of transition is that is ligand to metal charge transfer is potassium dichromate and KMnO4. These are the well-known examples which shows ligand to metal charge transfer, right? Here you see that here chromate is present in this form and this potassium permanganate in this form, and the oxidation state of chromium is here +6 and here manganese oxidation state is +7. Okay, so since the oxidation state is here +6 and +7, so we know that both are having no d electrons, right? यानी इन दोनों ही मेटल्स के पास में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट? तो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि दीज मेटल्स आर हैविंग व्हाट, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट? अब आप यहाँ देखिएगा, हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ओके, एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर एंड इट इज हैविंग फिल्ड पी ऑर्बिटल. क्या है इसके पास बताइए? फिल्ड पी ऑर्बिटल इसके पास में प्रेजेंट है. तो ऑक्सीजन की तो फील्ड पी ऑर्बिटल हो गई, मेटल की हो गई वेकेंट डी ऑर्बिटल. ओके, तो क्या हुआ देखिएगा आप, ये सपोज ये मैग्नीज है, ओके, तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो इट इज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल में लिगेंड ऑक्सीजन अपना फील्ड पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डाल देती है. सो देखिएगा आप, लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है. That's why such type of transitions is known as ligand to metal charge transfer. Okay. Now, here this point must be noted that if we increase the oxidation state of metal, what I'm telling you, see it clearly. If I increase the oxidation state of metal, then charge transfer process becomes easy. Try to understand this point. Since ligand is transferring its electrons to metal, if I increase the oxidation state of metal, then this metal will attract the electron from ligand more strongly. Okay? तो जब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे तो व्हाट विल हैपन कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को मजबूती से अपनी तरफ खींचेगी, या हम ये कह सकते हैं लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर कब फैसिलिटेट होगा, जब हम मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देंगे. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन इज टाइटेनियम 4, वेनेडियम 5, chromium 6 and magnesium 7. Here you see clearly that all these metals are having no d electrons. There is no d electron, right? But the charge is continuously increasing, that is the oxidation state of metal is increasing, and hence the intensity of color is also increased in the same order. Intensity of color also increases as the oxidation state. You see that this metal titanium +4 is colorless, इसका कोई रंग नहीं होता है, whereas vanadium 5 is yellowish in color. Okay, chromium 6, you know that potassium dichromate, dark orange in color, and magnesium 7 is violet in color. ओके, तो हम क्या कहेंगे कि जैसे जैसे हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी ओर खींचती है, और इस तरह से जो चार्ज ट्रांसफर है वो बहुत इजी होता है, और यही कारण है कि रंग की तीव्रता भी बढ़ती जाती है. राइट, इसके बिल्कुल सेम ऑपोजिट पॉइंट आप जरा सोच के देखिएगा. अब मैं अगर यहाँ तो मैंने मेटल की बात करी, अब अगर सपोज मैं लिगेंड की बात करती हूँ, ओके, तो आप क्या बोलेंगे देखिएगा कि जैसे जैसे मैं लिगेंड का विद्युत ऋणता को कम करूंगी, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ आई डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिगेंड, ओके, देन
चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल इज फैसिलिटेटेड। फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं क्या बोला आपको मैंने कि अगर मैं जो लिगेंड है उसकी विद्युत ऋणता को कम कर देती हूँ तो वो लिगेंड क्या करेगा, आराम से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, मेटल को दे देगा, और मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर इजीली हो जाएगा। तो अगेन रंग की तीव्रता इसी दिशा में बढ़ेगी। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मैं आपके सामने ला रही हूँ और वो है दैट इज दिस इज द कॉपर कॉम्प्लेक्स। ओके, हियर यू सी दैट दिस इज द CuCl4 2- complex. Okay, so this complex is blue in color, right? Now I replace this chlorine with bromine. Okay, that is Br4 2-, right? तो आप क्या नोट कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड लिया है। साइज ऑफ ब्रोमाइड इज मोर देन द साइज ऑफ क्लोराइड. Okay, so its electronegativity is less. Okay, and since it is less electronegative, so it can easily give it electron pair to metal, that is copper. ओके, यानी चार्ज ट्रांसफर इसमें आसानी से हुआ और यही रीजन है इसकी कलर की इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लिटिल बिट डार्कर और आई कैन से दैट इट इज डार्क ब्लू इन कलर. गॉट इट? नाउ सी हियर, chlorine is more electronegative as compared to bromide. Okay, now bromine is more electronegative as compared to iodide. तो अगर मैं इस ब्रोमाइड को, क्या बोला मैंने कि अगर मैं इस ब्रोमाइड का रिप्लेस आयोडाइड से करना चाहूं तो क्या होगा, जरा सोचिए. व्हाट विल हैपन? सिंस आयोडीन इज बिगर इन साइज, it is less electronegative, so it can easily donate its electron pair to copper +2. Okay, क्या वर्ड बोला मैंने कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से कॉपर +2 को दे देगी, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से कॉपर +2 को देगी तो हम ये क्या कहेंगे कि ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी. और किस तरह से होगी आप देखिएगा कि इसमें आयोडाइड ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया, कॉपर को दे दिया. सो कॉपर +2 गेट रिड्यूस्ड इनटू क्यूप्रस Cu+1 एंड आयोडीन गैस इज लिबरेटेड. ओके, तो आप ये देखिए, दिस लीड्स टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. सो दिस इज अबाउट द लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यानी जिसमें लिगेंड अपनी भरी हुई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल की खाली ऑर्बिटल्स में. ओके, नाउ आई कम टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड दैट इज द मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. ओके, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, क्योंकि मेटल लिगेंड को डोनेट कर रहा है या मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड पे ट्रांसफर कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर मेटल के पास होगी फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के पास क्या होगी, वेकेंट ऑर्बिटल. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो सच टाइप ऑफ लिगेंड्स हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स आर कार्बोनाइल्स, नाइट्रोसाइल एटसेट्रा. These are having pi antibonding molecular orbitals which are vacant, which can easily accept electron pair from metal ion. Okay, similarly arsenic, phosphorus are having vacant d orbitals which are vacant. Okay, और यहाँ पर जो बात मैंने आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में बोली उसकी बिल्कुल उल्टी बात मैं करूंगी. क्या बोलूंगी बताइएगा मेरे को. वहां पर मैंने आपको बोला कि अगर मैं, क्या बोला था लिगेंड टू मेटल में, कि अगर मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रही हूँ, ओके, तो क्या हो रहा है कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन आराम से खींच रहा है और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इजी हो रहा है. तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए. समझ में आया आपको? बताइए क्यों. क्योंकि अगर लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, जैसे +2 है +3 है, अगर कम हुई +2 हुई तो क्या होगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगी. लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगी. तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर करना है तो आई हैव टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, या मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था कम होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट. गॉट इट? एंड द सेकेंड पॉइंट क्या बोलूंगी बताइए, उल्टा जो हमने पहले बोला था उसका, और वो ये है, here since ligand is accepting electron pair from metal ion, hence ligand must be more electronegative. यानी जो ligand है
वो ज्यादा विद्युत ऋणी होना चाहिए। गॉट इट? यानी 2 पॉइंट, अगर हम धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को कम कर दें और अगर हम लिगेंड की विद्युत ऋणता को बढ़ा दें तो हम क्या देखेंगे, मेटल से लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बहुत ही इजी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ज ट्रांसफर एंड डी ट्रांजिशन। नाउ आई सम अप all these point in a comparative form. Just I am giving you this in a tabular form. Now you divide column, that is dd ट्रांजिशन। एक में आप लिखिएगा और दूसरे में लिखिएगा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अब आप जल्दी से कंपैरिजन कर लीजिएगा एक एक करके। नंबर 1 पॉइंट, इन डी ट्रांजिशन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस विद इन अ सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। गॉट इट? यानी किसी एक ही धातु की डी कक्षकों के बीच में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जबकि हियर इन चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर टेक फ्रॉम मेटल टू लिगेंड ऑर्बिटल्स और this take from ligand to metal orbital. Got it? So now according to this, number 2 point, since the transition of electron take place within a set of d orbitals of the same metal, hence less energy is required. So what I will say, dd transitions generally take place in visible region. Okay? Whereas चार्ज ट्रांसफर जो ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड पे जा रहा है या लिगेंड से मेटल पे जा रहा है, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड हेंस सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन जनरली टेक प्लेस इन अल्ट्रावायलेट रीजन। नंबर 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि जनरली सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस टेक प्लेस विद इन 10,000 to 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि इस तरह के जो संक्रमण होते हैं दे जनरली टेक प्लेस अबाउ 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, 4th पॉइंट, द कॉम्प्लेक्सेस विच शोज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस आर डीपली कलर्ड। इनके रंग बहुत ही गहरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए KMnO4 and K2Cr2O7 आर देयर examples of such type of compounds showing charge transfer transition, right? जबकि आप यहाँ आइए, इनके कलर चार्ज ट्रांसफर की तरह डीप नहीं होकर के दे आर लेस डीप, थोड़े कम गहरे होते हैं, है ना? होते तो ये भी कलर्ड है लेकिन कम गहरे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट। ओके, 5th पॉइंट ये है कि डी ट्रांजिशंस आर फॉरबिडन ट्रांजिशन, या ये कह सकती हूँ सच ट्रांजिशंस आर लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी ये जो लेपोर्टे वर्जित संक्रमण है, या ये मैं कह सकती हूँ कि ये सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं होते, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं और इसीलिए वर्जित होते हैं। और जो भी संक्रमण जो कि वर्ण नियम का पालन नहीं करता है, सिलेक्शन रूल का पालन नहीं करता है, उनकी तीव्रता यानी एप्सिलॉन बहुत ही कम होती है और इनकी तीव्रता लगभग 100 यूनिट्स होती है। कितनी होती है? 100 यूनिट्स, क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, राइट? जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो होते हैं वो वर्ण नियम का पालन करते हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन से अनुमत ट्रांजिशन है, जबकि ये फॉरबिडन है और इसीलिए इनकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही हाई वैल्यू है और वो इनकी जो वैल्यू है वो लगभग 500 to 2000 यूनिट्स होती हैं। यानी आप देखिए तीव्रता हमें क्या बताती है? तीव्रता हमें ये बताती है कि पीक कैसी आ रही है, बहुत इंटेंस आ रही है कि कैसी आ रही है। ओके, तो तीव्रता ये हमें बता रही है कि इनकी जो तीव्रता है बहुत कम है 100 यूनिट से, जबकि इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट कि हम ये देखें तो डी ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ CFT। CFT डी संक्रमण बता रही है, क्यों? क्योंकि CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड बिल्कुल अलग अलग है और उनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है
और इनके बंध की प्रकृति 100% क्या है, आयनिक है, तो वो डी डी ट्रांजिशन को आराम से समझा रही है। जबकि जो आपका ये है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, ये हम समझा पाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि मेटल की ऑर्बिटल और लिगेंड की ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करती है, उनकी आपस में मिक्सिंग होती है। तो ये तभी संभव है जब मिक्सिंग होगी, तभी मेटल का इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे जाएगा और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, मेटल पे आएगा। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ MOT एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ CFT। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप अच्छे से बस ये ध्यान रखिएगा कि DD एक ही मेटल में होता है, कम एनर्जी चाहिए तो वो विजिबल में होगा, ये मेटल से लिगेंड या लिगेंड से मेटल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये UV रीजन में होगा। इसकी रेंज 10,000 से 30,000 सेंटीमीटर इनर्स है, जबकि ये बहुत ही हाई रेंज में होता है और इसकी जो वैल्यू है वो आ गई आपकी अबव 50,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इनके कलर बहुत ही गहरे होते हैं चार्ज ट्रांसफर वालों के, जबकि इनके कलर DD संक्रमण वालों के इसकी तुलना में थोड़े कम गहरे होते हैं। ये जो DD संक्रमण है वो वर्ण नियम का पालन नहीं करते हैं या वर्ण नियम से ये वर्जित होते हैं और इसीलिए इनके एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ही कम, लगभग 100 यूनिट होती है, यानी इनके स्पेक्ट्रा की तीव्रता बहुत ही कम होती है। जबकि इनके एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 500 से लेके 2000 यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्शन रूल का पालन करते हैं। जो DD संक्रमण है वो CFT समझा सकती है, लेकिन MOT नहीं समझा सकती। CFT इसलिए समझा सकती है क्योंकि CFT बंध का नेचर आयनिक मानती है, तो वो एक मेटल को अलग से अज्यूम करती है और उसमें DD संक्रमण को समझा देती है। जबकि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हम CFT से नहीं समझा सकते क्योंकि वो बंध का नेचर आयनिक मान रही है, जबकि चार्ज का ट्रांसफर तभी संभव है जब मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करें, तभी मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे जाएंगे और लिगेंड के जाएंगे मेटल पे। तो ये हमें कौन समझाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मैंने अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आपका स्लाइड आएगा, जो भी मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको सिलेक्शन रूल के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से सिलेक्शन रूल से हमें ये बताते हैं कि कौन से संक्रमण होने चाहिए और कौन से संक्रमण नहीं होने चाहिए। ओके, तो आप इसे पढ़ के और फिर आइएगा। थैंक यू सो मच।